and today in Study with Pratik, we are going to discuss the second part of Chapter 2 of Class 10th Geography, CBSE-NCERT, and the chapter is Forest and Wildlife Resources. And in this chapter, we have already discussed the introduction, we have already discussed the classification of species and the factors which are responsible for the decline and the depletion of flora and fauna along with the decline of biodiversity of India. So now let's discuss the conservation of forest and wildlife resources या फिर forest and wildlife in India कि किस तरह से इंडिया में फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन किया जा रहा है या फिर आज तक कौन से ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं कि इंडिया की फॉरेस्ट को और इंडिया की वाइल्ड लाइफ को बचाया जा सके. So in this second part we are going to discuss about this. The first point in this is conservation preserves the ecological diversity and our life support system that are water, air and soil. So the water, air and soil are the life support system of all the living beings. And it is very necessary for all the forest and wildlife to have these all three components. So that's why only the conservation of these support system is very necessary for the ecological diversity and ecological balance. The second point, that the Indian Wildlife Protection Act of 1972 with various provisions for protecting habitats. For protecting the habitats, especially the wildlife habitats, there are some protection acts which were established or which were proclaimed by the government, like central government. तो इंडियन गवर्नमेंट ने 1972 में एक एक्ट पारित किया था जिसमें कुछ प्रोविजंस थे प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ के लिए, प्रोटेक्टिंग द हैबिटेट्स के लिए. उसका एम था to protect the remaining population of certain endangered species by banning hunting, giving legal protection to their habitats and restricting trade in wildlife. तो तीन चीजें बहुत ही इम्पोर्टेंट हुआ था. बैन किया गया था हंटिंग को, लीगल प्रोटेक्शन मिला था हैबिटेट्स को और रेस्ट्रिक्ट किया गया था ट्रेड, वाइल्ड लाइफ ट्रेड को. तो इन तीन चीजों पर एम था इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का. अब हम बात करते हैं फोर्थ टॉपिक, फोर्थ पॉइंट. द सेंट्रल एंड मेनी स्टेट गवर्नमेंट्स एस्टेब्लिश नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. तो आज भी देयर आर मेनी एग्जांपल्स. वी हैव अराउंड more than 20 national parks in our country. In India we have more than many 20-30. We have like I guess around 50 wildlife sanctuaries are also there in India. That in detail you will also discuss. You can Google it. You can very well found how many national parks and wildlife sanctuaries are there in India. So for example, we have Gir National Park, we have Kaziranga National Park. Okay, then wildlife sanctuary, there are many wildlife sanctuaries. Okay, we have bird wildlife sanctuary, we have animal, we have zoo. Okay, we have the sanctuaries and all that. Okay, there is a Sariska biosphere also, bioreserves. So bioreserves are also started by the government for the protection of the wildlife and the natural resources, the forest. Fifth point, the central government announced several projects for protecting specific animals which were gravely threatened, including tiger, one-horned rhinoceros and others. So these are some examples जो बहुत ही threatened लिस्ट में आते थे और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट ने लागू किए. जैसे फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट टाइगर which was launched in 1973. Project Tiger was launched in 1973 and it was launched to save the endangered species of tiger. The tigers were getting endangered. Okay, और आज देखा जाए तो टाइगर की स्पीसीज कंट्रोल थोड़ी सी हुई है. ओके, लायंस जो एशियाटिक लायंस थे उसकी जो स्पीसीज थी वो भी घटती जा रही थी, लेकिन नाउ इट इज समहाउ समवॉट स्टेबल. अंडर वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ 1980 एंड 1986. तो 1980 में और 1986 में वाइल्ड लाइफ एक्ट को पारित किया था जिसमें सेवरल 100 बटरफ्लाइज, यहाँ आप ध्यान से देखिए, बटरफ्लाइज है, मॉथ्स है, बीटल्स है और 1 ड्रैगन फ्लाई हैव बीन एडेड टू लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीसीज. तो प्रोटेक्टेड स्पीसीज के लिस्ट में बटरफ्लाइज को, मॉथ्स, बीटल्स और एक जो स्पीसीज था ड्रैगन फ्लाई को उसको ऐड किया गया प्रोटेक्टेड स्पीसीज
वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ 1980 एंड 1986। 1991 की बात करते हैं तो 1991 में पहली बार 6 नई स्पीसीज को इस लिस्ट में ऐड किया गया था, और वो 6 नई स्पीसीज ऐसी स्पीसीज थी जो एंडेंजर्ड होने की कगार पे थी। फॉर द फर्स्ट टाइम प्लांट्स वर एडेड। उसके पहले प्लांट्स को ऐड नहीं किया जाता था। प्लांट्स के जो 6 स्पीसीज थे उनको ऐड किया गया इस प्रोटेक्टेड स्पीसीज की लिस्ट में। So this was all about this topic called conservation of forest and wildlife in India. Till now we have discussed about the conservation of forest and wildlife in India. Now we will discuss types and distribution of forest and wildlife in India. कि जो इंडिया में जो फॉरेस्ट है और इंडिया में जो वाइल्ड लाइफ है उसके क्या टाइप्स है या किस तरह से उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो इन इंडिया much of its forest and wildlife resources are either owned or managed by the government. या तो गवर्नमेंट द्वारा उसको उसके पास गवर्नमेंट का हक है फॉरेस्ट का, या गवर्नमेंट उस फॉरेस्ट को मैनेज करती है। क्लासिफिकेशन हमने पहले ही चैप्टर में देखा था, रिसोर्सेज वाले चैप्टर में, कि all the resources which are there into the boundary of any country can be called to as national resources. Okay, तो जितने भी फॉरेस्ट है वो भी सारे नेशनल रिसोर्सेज कहे जाएंगे, जो कौन मैनेज करेगा? गवर्नमेंट उन रिसोर्सेज को मैनेज करेगा। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट की, कि किस तरह से फॉरेस्ट को क्लासिफाई किया जाता है। तो उसमें फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट क्लासिफिकेशन, फर्स्ट टाइप है रिजर्व फॉरेस्ट, सेकंड इज प्रोटेक्टेड एंड थर्ड इज अनक्लास्ड फॉरेस्ट। तो इन तीनों के बारे में डीपली हम अब डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज रिजर्व फॉरेस्ट। तो रिजर्व फॉरेस्ट वर्ड से ही पता चल रहा है कि इट इज मोस्ट वैल्यूड वन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंस जिस फॉरेस्ट का होगा दैट विल बी ऑफ कोर्स रिजर्व फॉरेस्ट। So it is regarded as the most valuable as far as the conservation of forest and wildlife is concerned. Second point, it covers half of the forest land. Okay, तो इंडिया के 50%, 50% से भी ज्यादा, okay, 50% से भी ज्यादा एरिया रिजर्व फॉरेस्ट, 50% से भी ज्यादा फॉरेस्ट एरिया रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर आता है इंडिया का। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? कवर्स हाफ ऑफ द फॉरेस्ट लैंड, तो अराउंड 50%। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की बात करें तो प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लीशन, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर द फॉरेस्ट विच आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लीशन। वहां पे जितना भी डिफॉरेस्टेशन वर्क है वो रोका गया होगा, बिकॉज इधर साफ कहा गया है इट इज प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट मतलब जो प्रोटेक्ट, जिसको सुरक्षा मिलती हो। ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। इंडिया का 1/3 फॉरेस्ट एरिया है वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंदर आता है। अनक्लास्ड फॉरेस्ट की बात करें तो अदर फॉरेस्ट एंड वेस्टलैंड्स बिलोंगिंग टू बोथ गवर्नमेंट्स एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज। तो अनक्लास्ड फॉरेस्ट बात से ही पता चल रहा है कि ऐसे वेस्टलैंड्स, ऐसे फॉरेस्ट जो गवर्नमेंट के पास कुछ अधिकार है, कुछ अधिकार इंडिविजुअल प्राइवेट लोगों के पास भी है, और कुछ कम्युनिटी ओन्ड फॉरेस्ट होते हैं। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के सबसे लास्ट टॉपिक के ऊपर, दैट इज कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। किस तरह से कम्युनिटी और कंजर्वेशन दोनों साइमल्टेनियसली साथ में चलते हैं। तो फॉरेस्ट वी नो, forest is the home for the wild animals, it is home for the natural vegetation, along with it is also the home of traditional communities. Traditional जो communities होती है, जो tribal people होते हैं, उनके लिए भी forest उनके लिए घर है। Local communities are struggling to conserve these habitats along with the government official to secure their long term livelihood. लॉन्ग टर्म लाइवलीहुड, उनको उनका जो खर्चा पानी है, उनका जीवन यापन है, वो कहाँ से हो रहा है? वो फॉरेस्ट से ही हो रहा है। किनका? ट्राइबल जो ट्रेडिशनल कम्युनिटीज है, ट्राइबल कम्युनिटीज है, उनका वहीं से हो रहा है। और वो गवर्नमेंट के साथ मिलकर कंजर्वेशन का काम कर रहे हैं, कंजर्व करने का काम कर रहे हैं फॉरेस्ट को। तो दैट इज अ गुड थिंग। एंड देन देयर इज सरिस्का टाइगर रिजर्व इन राजस्थान, एंड विलेजर्स हैव फॉट अगेंस्ट माइनिंग बाय साइटिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो वहाँ पे माइनिंग हो रहा था सरिस्का जो टाइगर रिजर्व है राजस्थान में, तो वहाँ पे विलेजर्स ने फाइट किया, विलेजर्स ने ओपोज किया अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, और उन्होंने कहा कि यहाँ पे इलीगल माइनिंग हो रहा है। तो दिस वाज द हेल्प ऑफ कम्युनिटी टू कंजर्व द फॉरेस्ट। ओके, फर्स्ट एग्जांपल सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान का। सेकंड, द फेमस चिपको मूवमेंट इन द हिमालयाज हैज सक्सेसफुली रेजिस्टेड डिफॉरेस्टेशन इन सेवरल एरियाज। तो आप बहुत अच्छी तरह, आप पहले छोटे थे तब से आप जानते हैं कि चिपको मूवमेंट हिमालयाज में हुआ था। वहां के फॉरेस्ट को बचाने के लिए लोगों ने एक चेन क्रिएट की और उन्होंने ट्रीज को हग किया, जिससे कि डिफॉरेस्टेशन से फॉरेस्ट को बचाया जा सके।
Also shown that community afforestation is indigenous species that can be enormously successful. तो कम्युनिटी एफोरेस्टेशन, कम्युनिटी साथ मिलती है, लोग साथ में मिलते हैं और साथ में मिलके फॉरेस्ट ग्रो करने का एक संकल्प लेते हैं और फिर फॉरेस्ट ग्रो करते हैं, फॉरेस्ट को और विस्तृत करते हैं, एक्सपैंड करते हैं. फार्मर्स एंड सिटीजन ग्रुप लाइक बीच बचाओ आंदोलन इन तहरीक एंड नवदन्या हैव शोन दैट एडिक्वेट लेवल्स ऑफ डाइवर्सिफाइड क्रॉप प्रोडक्शन. ओके, एडिक्वेट लेवल ऑफ डाइवर्सिफाइड क्रॉप प्रोडक्शन किया गया अंडर बीच बचाओ आंदोलन इन तहरी और नवदन्या. ओके, नवदान्या, हिंदी में नवदाने बोलते हैं, इंग्लिश में आप नवदन्या बोल दीजिए. फार्मर्स और सिटीजन्स ने साथ मिलकर ये काम किया जिसमें डाइवर्सिफाइड क्रॉप प्रोडक्शन किया गया विदाउट एनी यूज ऑफ केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स कुछ यूज नहीं किया गया, कोई केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज नहीं किया गया और उससे पता चला कि इट इज पॉसिबल एंड इकोनॉमिकली वायबल. तो ये जो कामकाज हुआ, जो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन हुआ तहरी में और नवदाने और बीच बचाओ जैसे आंदोलन से, इससे ये पता चला कि पॉसिबल है ऑर्गेनिक फार्मिंग करना, नेचुरल फार्मिंग करना और दैट इज इकोनॉमिकली वायबल ऑल्सो, उसमें कॉस्ट कम जाती है. जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो उड़ीसा में 1998 में इंट्रोड्यूस हुआ था, एक प्रोग्राम जिसका नाम है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, शॉर्ट में JFM, introduced in 1998 in the state of Odisha, shown good example for involving local communities in the management and restoration of degraded forest. तो जितने भी degraded forest है उसका मैनेजमेंट और उसके रिस्टोरेशन के लिए दो चीजें की गई, रिस्टोर किया गया और मैनेजमेंट किया गया डिग्रेडेड फॉरेस्ट को उड़ीसा में under the program called joint forest management. So this was all about the conservation along with communities. Communities और conservation किस तरह से साथ मिलके simultaneously चलती है. ओके, हमने डिस्कस किया हम किस तरह से हमारे फॉरेस्ट को, हमारे वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर सकते हैं. हमने क्लासिफिकेशन को देखा and this was all about the chapter. The chapter was short and because it was short I have divided this chapter in two parts. I hope you liked it. If you have any doubts, queries or question related to this chapter, you can comment it down below in the comment section. I hope you like, and if you like it, please make sure you like my video, you comment it, you share it to all your friends, and you can follow me on Instagram also. I will link down below my Instagram handle in the description box. And this was it for today, guys, and I hope you are all safe. Be happy, stay tuned and subscribe my channel. Thank you very much.